Hello dear student. Today I am come up with a new video. Here I have selected 15 favorite MCQs from S block elements. Okay, which are sometimes asked in various competitive exam, whether it is in JEE Advanced, JEE Mains, NEET or other competitive exam. Okay, today we are going to discuss this 15 question with detailed explanation. So what to do? You just pause the video and try to solve it by yourself first. Okay, if after that you see the video and see my solution. Here is the first question. A substance absorbs carbon dioxide and violently reacts with water. This substance is, okay, see, a substance that violently react with water. Among the four, which one violently react with water? See, calcium carbonate, it itself a salt. H2SO4, it is acid. This is lime and this is what? ZNO. So which one will react with water? See, we know what? Calcium oxide react with water and form calcium hydroxide. Okay, and it react with carbon dioxide and form CO3. So first option B is the correct. Second question. The following compound have been arranged in order of their increasing thermal stability. Identify the correct order. See, whenever you get question like this, try to make a mini periodic table by yourself. See, what is this? This is potassium carbonate. This is magnesium carbonate. This is calcium carbonate. And this is barium carbonate. See, if you arrange them according to your periodic table, what will be? See, beryllium. Okay, then what? Magnesium. Okay, magnesium उसके बाद क्या आएगा? Calcium. ठीक है, and then there is the potassium, calcium, beryllium. Okay, this is in group 2, this is in group 1. And these two are in same period. Okay, so who is one is the larger one? Potassium is the larger. Then what? Calcium, then magnesium, and then beryllium. Got it or not? Yes. Okay, and we know what? Larger the, according to Fajans rule. You know Fajans rule. According to Fajans rule, smaller the size of the cation, more the covalent character. Smaller the size of the cation, more the covalent character. तो यहाँ पे सबसे छोटा मतलब cation कौन सा होगा? बेरिलियम. Okay, तो what type of solid will form? That will be least stable. ठीक है, तो ये है ऑप्शन, ये 4. ठीक है, 4. उसके बाद क्या होगा? मैग्नीशियम ये है 2. उसके बाद क्या है? कैल्शियम ये है 3. और ओके 2 3 और लास्ट में क्या होगा? पोटेशियम. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, होप यू गॉट इट एंड इट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही मिलेगा. देखो, एस ब्लॉक में जितना मेटल है, वेदर दे आर एल्काली मेटल और एल्कालाइन अर्थ मेटल, तो दे फॉर्म 3 टाइप ऑफ सॉल्ट. वन इज कार्बोनेट, अनदर इज सल्फेट. ठीक है, कार्बोनेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट रहेगा. तो सबका ऐसा ही बिहेव होगा. उन लोगों का तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी और ऐसे करके भी आएगा. हु इज वन इजीली रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. देखो, इसका ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से भी पूछ सकता है कि आफ्टर हीटिंग व्हिच वन विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इजीली. ऑब्वियसली दिस विल, जिसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा वही क्या करेगा? इजीली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो.
See, this is a very interesting question and one of my favorite questions and बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये जेई एडवांस 2014 में पूछा गया है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो व्हाट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड? H2O2 इज कॉल्ड द हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, H2O2 is called hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide in its reaction with KiO4 and NH2OH respectively is reacting as, देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिएक्ट कराना है किसके साथ? पहले पोटेशियम आयोडीन O4. ठीक है, देखो हम लोग KiO4 इसके साथ अगर पोटेशियम H2SO को रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? KiO3H2O plus O2. And when it will react with NH2OH, it will release generally nitrogen gas and form water. Okay, we don't need to balance the reaction. We will just check यहाँ पे H2O2 कहाँ पे क्या हुआ है. ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पेरोक्साइड में क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहता है. ठीक है, तो इन दिस हियर यू कैन सी कि यहाँ से ऑक्सीजन का 0 में हो गया. ठीक है, तो व्हाट कैन वी सी? यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. और जिसका ऑक्सीडेशन होता है इट बिहेव लाइक व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट. तो इन दिस केस इट इज लाइक व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट. एंड सेकेंड हियर यू कैन सी. ओके, यहाँ पे कितना है? -1. और यहाँ पे जाके क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट -2. क्या कम हो रहा है? -1 से -2 हो रहा है. दैट मीन्स व्हाट? यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है. दैट मीन्स व्हेन किसी का रिडक्शन होता है तो वो बिहेव लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट? इन दिस केस इट बिहेव लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट and in the second it behave like a oxidation state. So option A is the correct one. Another question number 4. See, very easy question. The main oxide form on combustion of lithium, sodium, potassium in axis of air. देखो क्या है? lithium, sodium and potassium. All three are what? Alkali metals. ठीक है, ओके. व्हेन दे रिएक्ट विथ एयर इन एक्सिस अमाउंट. देखो ये याद रखना है, लिथियम हमेशा मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है. मोनोऑक्साइड, रिमेम्बर द टर्म मोनोऑक्साइड. ओके, एंड सोडियम ऑलवेज फॉर्म पेरोक्साइड. ओके, एंड पोटेशियम फॉर्म व्हाट? पोटेशियम फॉर्म सुपरऑक्साइड. दिस इज व्हाट? पेरोक्साइड. I'll talk about what is peroxide. So this is what? Superoxide. Okay. When the oxidation state of oxygen is -2, remember when the oxidation state of oxygen is -2, that is called oxide or monoxide. When it is -1, it is peroxide, and when it is -1/2, it is called superoxide. So here you can see the oxidation state of oxygen is -1/2. यहाँ पे क्या होगा? -1, यहाँ पे -2. Okay, तो obviously which option will be correct? C, Li2O. तो option B is the correct answer. Okay, it was asked in J 2016. C. Question number 5. Which of the following atom has the highest fast ionization energy? तो what is fast ionization energy? ठीक है, तो ionization energy means what? Ionization energy means energy needed to remove one electron from their valence shell, from the outermost shell. ठीक है, देखो क्या क्या है यहाँ पे? पोटेशियम, स्कैंडियम, रुबिडियम एंड सोडियम. मैं तो अभी बोला अगर इनऑर्गेनिक का और ये सब का क्वेश्चन करना है तो पहले तुमको
एक मिनी पीरियोडिक टेबल बनाना है खुद अपने से। देखो यहाँ पे क्या क्या है, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ठीक है। और या क्या, स्कैंडियम, स्कैंडियम कहाँ पे है, डी ब्लॉक एलिमेंट, पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद आता है कि स्कैंडियम। देखो व्हाट डू यू नो, what do we know that these are what alkali metals and this is what d block transition metal, और इन लोगों का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। एंड वी नो व्हाट मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दे इजीली गिव्स इलेक्ट्रॉन, ओके। बट इससे स्कैंडियम का मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, इसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट इजीली गिव द इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इट विल टेक largest or highest amount of energy to remove one electron from its outermost shell। तो इसलिए फर्स्ट किसका होगा, स्कैंडियम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following alkaline earth metal sulfate has its hydration energy greater than its lattice energy। ठीक है, देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किया हुआ है। देखो क्या क्या है, बेरिलियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। सी बेरिलियम, उसके बाद क्या आता है मैग्नीशियम, उसके बाद क्या आता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। दीज आर व्हाट, दीज आर सिंपली एल्काली अर्थ मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप टू। ग्रुप टू में क्या क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ओके, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इसको याद कैसे रखना है, बेटा मंगे कन्ना सुंदरी बाप राजी, ठीक है, कुछ भी करो। देखो ये सब क्या है, सल्फेट है, ऑल आर व्हाट सल्फेट। तो इसमें क्या पूछा है, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कालाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज द हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर, किसका हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होगा देन इट्स लेटिस एनर्जी। ओके, मतलब सिंपल क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। लेटिस एनर्जी मतलब क्रिस्टल, ये कितना स्ट्रांगली बॉन्डेड है, मतलब सिंपल। तुम अगर ये कैसे ले सकते हो कि किसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब वो इजीली ब्रेक करेगा। तो तभी बोला था, देखो इसका साइज क्या है, सबसे छोटा है और इसका साइज सबसे बड़ा है। एंड वी नो व्हाट, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, देखो हम लोग फाजन से इसको भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम नहीं, इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो इसके हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा, उसी हिसाब से कर सकते हो। दिस इज नॉट द proper explanation but you can solve like this, okay, this is a tricks, so obviously this will be the correct answer, ठीक है। it was asked in JEE 2015। see here we have another questions, in which of the following reaction H2O2 acts as a reducing agent। देखो वीडियो को पॉज करो और खुद करो, ठीक है। सी व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, ये पहले सबको पता होना पड़ेगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का बहुत सारा डेफिनेशन है, कुछ है क्लासिकल डिफिनेशन, कुछ है मॉडर्न डिफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनेशन व्हाट इज दैट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट मीन्स इट इज रिड्यूसिंग, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है दैट मीन्स इट इज ऑक्सीडाइजिंग। तो सिंपल, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट और रखने का जरूरत नहीं है, सिंपल उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पे 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो 2 नेगेटिव, दैट मीन्स सिंपल वी कैन सॉल्व इज लाइक दिस, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और बाकी समय इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, तो उसी हिसाब से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, ओके। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। See here another question, stability of the alkaline earth metal sulfate in water decrease in the sequence। देखो क्या है क्वेश्चन, जे solubility of the
एल्कालाइन अर्थ मेटल सल्फेट। ठीक है, मतलब किस, बताओ बताओ कौन सा होगा। ओके, ठीक है, आई थिंक यू गॉट द करेक्ट ऑप्शन। देखो देखो, सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल, ये सब क्या है? एल्कालाइन अर्थ मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल का अरेंजमेंट क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मंगे, कन्ना सुंदरी, ओके, बाप फराजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है? बेरिलियम नहीं है और रेडियम नहीं है, ये चार का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो हम लोगों को एक बात पता है क्या? सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, तो क्या याद रखना है हम लोग को? नीचे जाने से क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? लेटिस एनर्जी इंक्रीज होता है, लेटिस एनर्जी। बट हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा डिक्रीज होता है और लेटिस एनर्जी हमेशा इंक्रीज होता है। और जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो उसका सोल्युबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, तो इट इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट obtained as a result of a reaction of nitrogen with calcium carbide। देखो, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड अगर ये किसके साथ रिएक्ट करता है? नाइट्रोजन के साथ, तो याद रखना है दे फॉर्म ए प्रोडक्ट दैट इज CaCN2 प्लस कार्बन। इसको बोलता है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम साइनाइड। ओके, साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड। और इसका एक वेरी फेमस नेम है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिम। यू नीड टू रिमेम्बर, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिम, नाइट्रोलिम, नाइट्रोलिम। वेयर इट इज यूज्ड? बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट इज नाइट्रोलिम का यूज क्या होता है, बताना सब मुझे। तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? देखो, इसलिए इनऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़ना है? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स पढ़ना है। जनरली जेई वालों ये पोर्शन क्या करता है? इग्नोर करता है, इसको इग्नोर नहीं करना है। कैल्शियम आयन are not important in maintaining the regular beating of the heart. Yes, it is correct or incorrect? ओके, देखता है क्या होता है। मैग्नीशियम आयन आर important in the green parts of the plants. Yes, yes, you know क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या रहता है? मैग्नीशियम, तो obviously it is correct. Mg ion form a complex with ATP. Yes, yes, you know ATP, adenosine triphosphate। ठीक है, और इसको याद रखना है ATP में क्या रहता है? मैग्नीशियम रहता है। कैल्शियम आयंस आर इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग। यस, इसको भी याद रखना है। कैल्शियम आयंस एंड विटामिन के बोथ प्ले क्रूशियल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बट तुमको एग्जाम में याद रखना है फॉल्स ट्रू क्या पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये ट्रू और फॉल्स क्या पूछा है, यस नो से मार्क आता है। इट विल रिड्यूस योर मार्क। ओके, सी नाउ क्वेश्चन नंबर 11। On heating, which of the following release carbon dioxide most easily? सेम क्वेश्चन आया गया है, जल्दी बोलो। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। ओके, तो इसको देखना है सोडियम, इसके बाद क्या है? ऐसा है मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम, और यहाँ पे होगा पोटेशियम। ठीक है, which one is the smallest one? सबसे छोटा कौन सा है? मैग्नीशियम। देखो, इन ए प्रेडिक्टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। तो अमोंग दिस फोर व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट वन? Mg
ओके। एंड मैंने क्या बोला था, जिसका कैटायनिक साइज देखो Mg2+, और ये क्या है CO3 2 नेगेटिव, तो ये क्या है कैटायन और ये है एनायन। जिसका इसका साइज सबसे छोटा होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, वो इजीली क्या होगा ब्रेक डाउन होगा और इजीली क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करेगा। तो उसी हिसाब से among these carbonate salt MgSO4 will release carbon dioxide easily. Okay, I will show you the reaction. MgCO3, okay, when he will heat it will form oxide plus carbon dioxide. ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following compound is a peroxide? I told you already what is peroxide. peroxide means जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1 है, तो उसको क्या बोलते हैं पेरोक्साइड। देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो पोटेशियम का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का क्या है x कितना है 2 0, तो x का वैल्यू x कितना होगा -½ होगा। ठीक है। और यहाँ पे बेरिलियम ये इसके कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप 2 में है, तो 2, और ऑक्सीजन कितना है 2, तो किसका होगा 0, तो 2x = -2, तो x का वैल्यू कितना होगा -1। ऑब्वियसली दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स चेक वन मोर। देखो इसमें भी तो ये मैग्नीशियम है, इसमें तो हो नहीं सकता, ये मैग्नीशियम क्या है ट्रांजिशन मेटल, इसका तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो ऑब्वियसली इसका कितना होगा -1, तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे कितना होगा, नाइट्रोजन भी सेम, यहाँ पे तो -1 नहीं होगा। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following is present as an active ingredient in bleaching powder for bleaching action? Okay, so what is bleaching powder? First of all you need to remember bleaching powder is calcium hypochlorite. Okay, देखो bleaching powder when react with any germs, okay, it release what nascent oxygen मतलब में active oxygen। ठीक है। और इस एक्टिव ऑक्सीजन की वजह से ये कलरफुल कंपाउंड को भी कलरलेस में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, किसी भी जान को ये किल कर सकता है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। देखो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अमोंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द वन व्हिच इज मोस्ट बेसिक, तो इसके लिए क्या याद रखना है, कुछ भी नहीं, सिंपल oxide of metal oxide, simple what they are basic, and non-metal oxides are what acidic। तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या पूछा है, हुई सी था मोस्ट बेसिक, तो नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल, ऑब्वियसली ये हो नहीं सकता है। ठीक है। और उसके बाद याद रखना है ऑक्साइड ऑफ Al2O3 ZNO PbO, ठीक है, ये सब क्या होता है एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक। ठीक है। तो ऑब्वियसली MgO मैग्नीशियम ये मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या होगा बेसिक होगा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो क्या क्या है, लिथियम सोडियम एंड बेरिलियम, लिथियम sodium and beryllium, lithium beryllium in same period, lithium and sodium in same group, तो which one is the smallest one? Obviously beryllium, उसके बाद क्या होगा lithium then sodium, size is increasing like this। ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता है, smaller the size of the cation, more will be the covalent character, obviously option C is the correct one। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप मजा आया होगा। तो कैसा लगा कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट व्हिच चैप्टर यू वांट टू सोल्व बाय मी, जस्ट कमेंट बिलो। थैंक यू।